अस्सलाम वालेकुम आदाब। वन टीवी के उर्दू खबरनामे में आप सबों का इस्तकबाल है। मैं शहबाज। आगे बढ़ने से पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर खराज अकीदत किया पेश, तालीमी इस्लाहात का ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर शदीद हमला, कहा आज़ादी में उनका कोई किरदार नहीं। राहुल गांधी का महाराष्ट्र में इंतखाबी खिताब, मोदी हुकूमत और मायावती हुकूमत पर शदीद तनकीद। इलाहाबाद में यूपीपीएससी उम्मीदवार का एहतजाज, पुलिस की जबरी गिरफ्तारियों से मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया। जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर अज़्म का इजहार। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज यानी 14 नवंबर को हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश के मौके पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने कहा कि अवामी हुकूमत ने स्कूली तालीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई हैं, जिनका मकसद बच्चों को मुस्तकबिल की जिम्मेदार शहरी के तौर पर तैयार करना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए 2 यूनिफॉर्म फराहम करने की जिम्मेदारी ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सौंपी है और स्कूलों को मुफ्त बिजली फराहम करने का फैसला भी पहले ही कर लिया गया है। विकाराबाद में जिला कलेक्टर पर मुबैना तौर पर हमले के वाक़ये पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आला के मुआविन ने कहा है कि कॉल डेटा का तज्ज़िया किया जा रहा है ताकि इस वाक़ये के पीछे मौजूद मुलज़िमान और उन्हें उकसाने वाले को बेनकाब किया जा सके। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भी इस वाक़ये में मुलव्विस है उसे बख्शा नहीं जाएगा। कॉल डेटा के ज़रिए उसकी हकीकत सामने आएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि यह वाक़या पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत किया गया था और वो इसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। रेवेन्यू मिनिस्टर श्रीनिवास रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि किसानों के लिबास में छुपे हुए लोग जल्द ही बेनकाब हो जाएंगे और ये हमला बीआरएस पार्टी से जुड़े अफराद की तरफ से था। उन्होंने कहा कि मास्क के पीछे और किसानों के आड़ में जो लोग इस तशद्दुद में मुलव्विस थे उन्हें कानून के कटघरे में लाया जाएगा। అవకాశాలతో పాటు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఒక డీటెయిల్డ్ ప్రోగ్రామ్తో ముందుకు పోతా ఉన్నారు. ఈ పోయే క్రమంలో సరే పారిశ్రామికీకరణ, ఇండస్ట్రియల్ పార్క్స్ అంటే తప్పనిసరిగా భూసేకరణ జరగాల్సిందే. సరే భూసేకరణ జరిగిన క్రమంలో భూమి కోల్పోయేటువంటి రైతాంగ సోదరులకి ఉన్నటువంటి బాధ కూడా మనందరికీ తెలిసిందే. అందులో మరీ ముఖ్యంగా నిరుపేదలు, బలహీన వర్గాలు, దళితులు, గిరిజనులు ఉంటే ఇంకా బాధగా ఉంటుంది. భూమే వాళ్ళకు ఉండదు, ఆ ఉన్నటువంటి భూమి కూడా కోల్పోతున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా బాధ ఉంటుంది. ఆ బాధని సంపూర్ణంగా ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం అర్థం చేసుకుంటుంది. అయితే ఈ చేసే క్రమంలో భూమి కోల్పోతున్నటువంటి వారికి ఒక మంచి R&R ప్యాకేజ్ ఇచ్చి ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా కావాల్సిన సహాయ చర్యలన్నీ తీసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వటం కూడా జరిగింది. భూమి కోల్పోతున్నటువంటి వాళ్ళకి మెరుగైనటువంటి ప్యాకేజ్ ఇవ్వటమే కాకుండా అక్కడ వచ్చేటువంటి పరిశ్రమలో వాళ్ళకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా వచ్చేటట్టుగా చేసే ఏర్పాట్లు కూడా చేయటం జరిగింది. అప్పటి వరకు కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా ఆయా కుటుంబాలకు సంబంధించిన నిరుద్యోగ యువకులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళందరికీ ప్రత్యేకంగా తర్ఫీదు ఇచ్చి ప్రత్యేక పరిశ్రమల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించడం కోసం కూడా చర్యలు తీసుకోవడం కూడా జరిగింది. ఆల్రెడీ ఆ ప్రాసెస్ కూడా జరుగుతుంది. గతంలో ఎప్పుడు లేనట్టుగా R&R ప్యాకేజీని స్పష్టంగా ఉన్నతమైనది, ఒక మంచిదిగా బాగా లబ్ధి చేరేటట్టుగా ఆలోచన చేసి ఇస్తున్నటువంటి ఈ క్రమంలో కావాలని టీఆర్ఎస్ అంటే అలియాస్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఆ బీఆర్ఎస్ అలియాస్ టీఆర్ఎస్ కావాలని ఒక జిల్లా కలెక్టర్ పైన లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ క్యాడర్ అధికారి పైన ఇంకా ఇతర అధికారుల పైన ఒక కుట్రపూరితంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ జరిగేటువంటి క్రమంలో ఒక ముందుగా వేసుకున్నటువంటి ప్లాన్ ప్రకారం మీరు కొద్దిమంది అరాచక శక్తులను అక్కడ పెట్టి వాళ్ళను అమాయకులైనటువంటి గిరిజనులను రెచ్చగొట్టి
తద్వారా వాళ్ళు దాడి చేసేటట్టు ప్రక్రియను మీరు సృష్టించి ఈ ప్రభుత్వం ఏదో తప్పు చేస్తున్నట్టుగా ఒక భ్రమలు కల్పించడం కోసం చేసే ప్రక్రియ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాను. నేను కాదంటలేదు, ఎవరైనా భూములు కోల్పోతున్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ ప్యాకేజ్ కోసం ఆలోచన చేయాలన్నప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి ఫోరమ్స్ అన్ని రకరకాలైనటువంటి వ్యవస్థలు ఉన్నాయి. కలెక్టర్ కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే తిరిగి చర్చల ద్వారా మాట్లాడుకోవచ్చు, లేకపోతే ఇతరత్ర కోర్టులకు పోవచ్చు. అనేక వ్యవస్థలు అందుబాటులో ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటిని వాడుకోవటానికి ఏమైనా నిషేధం ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే ప్రభుత్వం వాటికి సహకరించినప్పుడు మీరు ఈ రకమైనటువంటి ఉద్రిక్త వాతావరణం సృష్టించి కుట్రపూరితంగా దాడులు చేపించే కార్యక్రమం చేస్తే సరే ఒక ఆలోచన చేయవచ్చు. కానీ అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా స్వేచ్ఛగా భావ వ్యక్తీకరణ చేయటమే కాదు, ఎక్కడికి ఎవరైనా వచ్చి రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సమస్య పైనని స్పష్టంగా ప్రభుత్వం తలుపులు తెరిచి కూర్చున్నప్పుడు కావాలని మీరు ఈ రకంగా అమాయకులైన పేద గిరిజన కుటుంబాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు రెచ్చగొట్టేటట్టుగా చేసి ఒక జిల్లా స్థాయి అధికారి పైన, ఒక మ్యాజిస్ట్రేట్ పైన మీరు దాడి చేయించడం అంటే మీ ఉద్దేశం ఏంటి? అంటే ఈ రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలు రావద్దు, అభివృద్ధి జరగొద్దు, నిరుద్యోగ యువకులకి మీ హయాంలో ఎవరికి ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా ఏ రకంగా అయితే నష్టపెట్టారో ఆ రకంగానే నష్టపెట్టాలి అనేటువంటి ఒక దుర్మార్గపు ఆలోచనతో ముందుకు పోవటం అనేది బాధ్యత కలిగినటువంటి ప్రతిపక్షంగా ఇది సరైనది కాదని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. 10 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసినటువంటి మీరు మల్లన్న సార్ దగ్గర భూసేకరణ చేశారే, అనేక ప్రాజెక్టుల దగ్గర భూసేకరణ చేశారే, ఏనాడు కూడా మేము ప్రజాస్వామ్యయుతంగా గొంతెత్తి ప్రజల పక్షాన్ని మాట్లాడాం తప్ప ఎప్పుడు ఈ రకమైన దాడులు చేపించలేదు కదా. ఈ రకంగా లేకపోతే ఒకళ్ళు తలబాలు కొట్టో, లేకపోతే బట్టలు చింపటో, లేకపోతే ఇంకో రకంగా చేయటం, లేకపోతే ఇంకోళ్ళు రెచ్చగొట్టే కార్యక్రమాలు చేయలేదు కదా. న్యాయస్థానాలు ఆశ్రయించారు, యంత్రాంగం దృష్టికి తీసుకొచ్చారు, పత్రికల ద్వారా ప్రజలకు తెలియజెప్పారు, ఉన్న వ్యవస్థలన్నింటినీ వాడి మేము దృష్టి తీసుకొచ్చాం. ఏనాడు ఇటువంటి దుర్మార్గ కార్యక్రమాలు చేయలేదే. ఎందుకు ఈరోజు మీరు ఇటువంటి దుర్మార్గ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నారు? ఒక కలెక్టర్ మీద దాడి చేపిస్తే ఇక ఏ జిల్లాలో కూడా ఎటువంటి పరిపాలన సంబంధమైనటువంటి కార్యక్రమాలు జరగకుండా భయభ్రాంతులు సృష్టిద్దామని అనుకుంటున్నారేమో చాలా స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध को महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र लातूर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी में बीजेपी और आरएसएस का कोई किरदार नहीं है और दोनों जमातों को सख्त अल्फाज में निशाना बनाया। खड़गे ने बीजेपी की मुतनाज़ा नारे बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सिर्फ हैं पर भी शदीद एतराज़ करते हुए उन्हें मुल्क को तकसीम करने वाला करार दिया। कांग्रेस सदर ने मज़ीद कहा है कि बीजेपी की हुकूमत चोरों की हुकूमत है और महायुति इत्तेहाद की शिकस्त को यकीनी करार दिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर में शामिल ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी के वादे का भी दिफा किया। खड़गे ने वजाहत की कि ये मरदमशुमारी लोगों को बांटने के लिए नहीं बल्कि इत्तेहाद को फ़रोग देने और तमाम तबक़ात में फ़वाइद के मुनसिफाना तकसीम के लिए है। गुलबर्गे में भी आधा गुलबर्गे में कहीं ना कहीं ये नाम वाले आपको मिलेंगे, यानी ये संतों का छाप गुलबर्गा बीदर में बहुत बड़ा है। तो ऐसे जगह पे हम आए हैं और ये जो महाराष्ट्र है, मराठवाड़ा, यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा देन है। औरंगाबाद में उन्होंने पहला जो कॉलेज खोला मिलिंद कॉलेज, शायद ही और दूसरा कोई कॉलेज नहीं था इस एरिया में। उसके बाद में बहुत से कॉलेज निकले, लेकिन आज़ादी के पहले जो शिक्षण संस्था काम की वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मिलिंद कॉलेज के नाम से उन्होंने शुरू किए थे। बहुत से लोगों को मालूम नहीं रहता भाई मिलिंद ये नाम कहाँ है, किसका है। ये मिलिंद नाम है जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था,
उसका ग्रेट ग्रैंडसन मिलिंद, उसका नाम था मिलंडर। वो मिलंडर जाके आगे वो मिलिंद बन गया हिंदुस्तान में। ऐसे एक महान व्यक्ति जो बुद्ध धर्म में वो आया था, उसको उसके नाम से उन्होंने, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कॉलेज खोली, क्योंकि वो ग्रीक कंट्री के थे। तो उन्होंने बहुत कुछ बुद्धिज्म अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, इस एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, तक्षशिला, आपको मालूम है, बहुत से मैं हिस्ट्री बोलने नहीं जाता, वहाँ ये थे। और उनके गुरु थे नागसेन, और वही नागसेन का वन बोल के औरंगाबाद में उन्होंने रखा। यानी गुरु शिष्यों का नाम पहले बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर औरंगाबाद में रखे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है। ये शिक्षण का केंद्र है और यहाँ पर ऐसे बहुत चीफ मिनिस्टर बने, बहुत से मराठवाड़ा से, मराठवाड़ा लक्की है, यहाँ शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर बने, शंकरराव चौहान बने, शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, ये बहुत से नेता। और सबसे ज़्यादा विलासराव देशमुख जी यहाँ पर काम किए, इरिगेशन के काम किए। और उसके वजह से दिलीप राव को चांस मिला 6 शक्कर कारखाने बनाने का, क्योंकि ये जो अगर बांध नहीं होते, डैम नहीं होते, तालाब नहीं होते, तो कहाँ से आप गन्ना उगाते थे? ये गन्ना उगाने का जो आपको समय मिला या एक चांस मिला कि विलासराव देशमुख अपने एक कोशिशों से यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स वो लगाए, इसीलिए आज मराठवाड़ा संपन्न है। लेकिन एक बात है, मराठवाड़ा खास करके हमारे लातूर जिला, ये सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आया है सोयाबीन का, कपास का। सोयाबीन जो ये सेंटर है लातूर, लेकिन सोयाबीन को आज उसका दाम नहीं मिल रहा। मोदी ने तो जीएसटी सबको बढ़ा दिया, सब ट्रैक्टर पे टैक्स लगाया, दूसरे इक्विपमेंट में भी टैक्स लगाया, हर चीज पे उन्होंने टैक्स लगाया जो किसान उपयोग करता है। लेकिन सोयाबीन का जो एमएसपी है वो क्यों नहीं बढ़ाया, मैं पूछ रहा हूं। सोयाबीन का यहां पर आकर फडणवीस ने कहा मैं एमएसपी 6,000 रुपए कुंटल दूंगा, बोला या नहीं बोला? लास्ट जब इलेक्शन में आए थे पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला 6,000। हिंदुस्तानी खलाई तहकीकी तंजीम इसरो के सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने हालिया तौर पर एक इजलास में इंकिशाफ किया है कि इसरो में खर्च किए गए हर रुपए हर समाज को 2.5 रुपये का फ़ायदा हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इसरो ने हाल ही में एक स्टडी की थी जिससे ये बात सामने आई है कि खलाई एजेंसी में लगाए गए रकम समाज के लिए मुफीद साबित हुए हैं। डॉक्टर सोमनाथ ने यह मालूमात कर्नाटक में तालीमी इंस्टीट्यूट सोसाइटी में तलबा के साथ बातचीत के दौरान फराहम की। इस इजलास का इनेकाद कर्नाटक हुकूमत के समाजी फलाह और साइंस और टेक्नोलॉजी महकमे ने किया था। डॉक्टर सोमनाथ ने मजीद कहा कि इसरो का मकसद खलाई तहकीक में दुनिया के सरगर्म ममालिक के साथ मुकाबला करना नहीं है, बल्कि मुल्क की खिदमत करना है। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसरो को वो काम करने की आज़ादी हासिल होनी चाहिए जो वो चाहता है। उन्होंने कहा कि खलाई टेक्नोलॉजी में कारोबारी मौक़े पैदा करने के लिए एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम कायम किया जाएगा ताकि इसरो को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी
व वसाइल मिल सके। राज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली अमानतुल्लाह खान को बड़ी राहत फराहम की है। अदालत ने उनकी रिहाई का हुक्म देते हुए ये करार दिया है कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनासिब मंजूरी हासिल नहीं की गई थी, जिसके बुनियाद पर अमानतुल्लाह खान को जेल से बाहर आने की इजाज़त दी गई है। अदालत ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की तरफ से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट को भी मुस्तरद कर दिया, जिसमें अमानतुल्लाह खान पर मज़ीद इल्ज़ामात आयद किए गए थे। अदालत ने कहा कि अगरचे केस में खान के खिलाफ कुछ सबूत मौजूद हैं, ताहम उनके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ मुनासिब मंजूरी हासिल करने के बाद ही की जा सकती है। इस फैसले के बाद अमानतुल्लाह खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है और उनका जेल से बाहर आना मुमकिन हो गया है। लोकसभा में हज़ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी ने आज महाराष्ट्र के नंदुरबार में एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत और रियासत की महायुति हुकूमत दोनों पर शदीद तनकीद की। उन्होंने महाराष्ट्र असम्बली इंतखाबात को दो अहम नज़रियात के जंग करार देते हुए कहा है कि एक तरफ इंडिया ब्लॉक है जो मुल्क को आइन के तहत चलाने की हिमायत करता है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी है जो इस आइन को खाली कहती है। राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से आइन को खाली बताए जाने पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि मोदी जी, ये आइन खाली नहीं है, इसमें गरीबों, दलितों, पसमानदों, कबायलियों की आवाज़ है। आपको क्या पता है कि आइन में क्या लिखा गया है, क्योंकि आपने इसे कभी पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने आइन की किताब को लाल किताब कहे जाने पर भी अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा है कि वो कहते हैं कि मैं रैलियों में आइन की लाल किताब दिखाता हूँ, लेकिन मैं कहता हूं कि आइन की किताब का कवर लाल हो या किसी और रंग का हो, इसके अंदर जो लिखा है वो ज़्यादा अहम है। हम इसकी हिफाजत के लिए जान देने को तैयार हैं। राहुल गांधी ने इस खिताब में मज़ीद कहा है कि बीजेपी के रहनुमा आइन को कमतर समझते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस आइन की हिफाजत करेगी क्योंकि यही मुल्क की यकजहती और तरक्की की बुनियाद है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं संविधान को पब्लिक मीटिंग में दिखाता हूं और संविधान खाली है। संविधान उनके लिए खाली है क्योंकि उन्होंने ये संविधान जिंदगी में पढ़ा नहीं है। उनको कोई आइडिया नहीं कि इस किताब के अंदर क्या लिखा हुआ है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के लिए यह संविधान खाली है। वो कहते हैं कि लाल रंग का संविधान राहुल गांधी दिखाता है। देखिए, इस पर क्या रंग है, नीला है, लाल है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर जो लिखा है उसकी हम रक्षा करते हैं, उसके लिए हम जान देने को तैयार हैं। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रही है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में नाम दिया गया है। आपको संविधान में आदिवासी नाम दिया गया है। इस संविधान में आप कहीं भी पढ़ लो, इस संविधान में आपको वनवासी नहीं कहा जाता है, आपको आदिवासी कहा जाता है। मगर आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपको वनवासी कहते हैं। इन दो शब्दों में बहुत बड़ा फर्क है। आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान के पहले मालिक थे। इस संविधान में बिरसा मुंडा जी ने जो त्याग किया, जो शहीद हुए, उनके शब्द हैं। इसीलिए संविधान में आपको आदिवासी नाम दिया गया है। आदिवासी नाम का मतलब समझिए। आदिवासी नाम का मतलब हिंदुस्तान के पहले निवासी, हिंदुस्तान के पहले मालिक। मतलब ये जो जल है, ये जो जंगल है, ये जो जमीन है, उसका पहला अधिकार आदिवासियों का है।
ये बात इसके लिए बिरसा मुंडा जी लड़े थे कि जमीन हमारी, जल हमारा, जंगल हमारा, और जल, जमीन और जंगल का फायदा हमें नहीं मिल रहा, इसीलिए शहीद हुए। वो अंग्रेजों से लड़े। आज वही सोच लेकर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी घूम रही है। वो कहते हैं आप वनवासी हो। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपको ना जल पर, ना जंगल पर, ना जमीन पर अधिकार होना चाहिए। वो आपसे अधिकार छीनते हैं। आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर पूरे देश में जंगल काटने का काम करते हैं, आपकी जमीन छीनने का काम। उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यूपीपीएससी के उम्मीदवारों का एहतजाज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब पुलिस ने मुजाहरा कर रहे तलबा को जबरन गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजाहरा करने वाले तलबा में अफरा तफरी फैल गई जब पुलिस अहलकारों ने सादा लिबास में आकर एहतजाज कर रहे तलबा को घसीट कर ले जाना शुरू कर दिया। इस दौरान एक तलबा ने बताया कि पुलिस ने खवातीन मुजाहिरीन के साथ भी बदसलूकी की। मुजाहरे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं जिसमें पुलिस को तलबा को घसीटते हुए और ज़बरदस्ती हिरासत में लेते हुए देखा गया है। इससे कबल बुध के रोज़ पुलिस ने 11 तलबा को हिरासत में ले लिया था क्योंकि वह लाइब्रेरी को ज़बरदस्ती बंद करवा रहे थे। पुलिस ने उन पर माहौल ख़राब करने के दफ़ात के तहत चालान किया था, लेकिन इसके बावजूद तलबा की बड़ी तादाद ने एहतजाज जारी रखा। तलबा का एहतजाज यूपीपीएससी की पीसीएस प्री और आरओ इंतखाबात को 2 दिनों में कराए जाने के ख़िलाफ़ है। उनका कहना है कि इम्तहानात एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराए जाए ताकि नॉर्मलाइजेशन के असरात से बचा जा सके। तलबा की अहम शिकायत यह है कि 2 दिनों में इम्तहान होने से नॉर्मलाइजेशन के अमल के ज़रिए उनकी स्कोर में कमी आ सकती है जो उनके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदह है। सर यही अपडेट है कि हम सुबह 6:30-7 बजे से यहाँ पे आए थे। हम छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए। कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाए, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान है कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था। पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। हम कोई रोड छात्र नहीं है सर। हमारा पेपर 1 महीने बाद है, हम लोगों को पेपर की तैयारी करनी है। हम यहाँ पे आके आंदोलन कर रहे हैं। ये किस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था है सर? हम यही बोलना चाहते हैं। दिसंबर में सर प्रदर्शन हमारा शांतिपूर्ण नहीं है। हमारी मांगों को पूरा किया जाए। प्रशासन सर हमको उकसा रहा है, सिविल ड्रेस में आ रहे हैं, हमारे दोस्तों को धमका रहे हैं कि आप यही करने आए हो। महिलाओं को सर हमारे सबके पास फोटोज थी, अभी भैया के पास हैं, वहाँ पे महिलाओं को सिविल ड्रेस में आके उठा रहे हैं, ले जा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे सबके साथ ट्रीट किया जा रहा है सर। पुलिस सर हुआ है, वीडियो है, आप अभी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, उसका फुटेज आपको दिखाएंगे सर। सबके पास उन बच्चों का फुटेज है, अभी हम आपको दिखा सकते हैं। इस वक्त हमारे व्हाट्सएप में नहीं है पर मेरे भैया के पास है जिन्होंने अभी ये फुटेज लिया। ये सारी चीजें सत्य हैं, आपने अभी देखा। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है? ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना जाएगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा है? जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है? मौके की तलाश में थे कि छात्र जो है अपने रूम पे जाए, यहाँ पे छात्र बल की संख्या कम हो, तब हम इस छात्र को, इस आंदोलन को खत्म कर सके। ये पुलिस की पूरी साजिश है और ये साजिश नहीं चलेगी। हमें कोई सरकार से या किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये छात्र का आंदोलन है और छात्र के मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो यहाँ पे कोई राजनीतिकरण नहीं हो रहा है।
पुलिस जो है एसटीएफ के सादे ड्रेस में आके आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये प्रदर्शन हम लोग अपने एग्जाम को लेकर कर रहे हैं। हम लोग कल रात से यही हैं, 3 दिन से हम लोग लगातार बैठ रहे हैं। और आज सुबह क्या हुआ, हम लोग जब अपने दिन की शुरुआत की, हम लोग धरना की शुरुआत अपने राष्ट्रगान के साथ करते हैं। और जब जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, हम लोग यहाँ बैठे थे तो सारे मतलब कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में आए थे और हम लड़कों के साथ बदतमीजी करने लगे, घसीटने लगे। और एक दो हमको खुद ही लाठी पड़ी, आप पीछे देख सकते हैं, 1-2 लाठी पड़ी है लड़कों को भी। और हमारी एक बहन थी गौरी, उसका तो आप बताइए विकलांग है, वो बैसाखी तक ले गए हैं पुलिस प्रशासन। बताइए वो कैसे चलेगी? ये हम दिव्यांग बच्चे और हम विद्यार्थियों के साथ ऐसी बदसलूकी की जा रही है कि दिव्यांग बच्चों को तक नहीं छोड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने 13 नवंबर को व्हाइट हाउस में नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की, जिस दौरान दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अज़्म का इजहार किया है। बाइडन ने ट्रंप का पुरतिपाक इस्तकबाल करते हुए कहा, वापसी पर खुशामदीद। इस मुलाकात में इक़्तिदार की मुंतकली के अमल में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। याद रहे कि 2020 के अमरीकी इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की शिकस्त के बाद इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से कई रवायात पर अमल नहीं किया गया था। उस वक्त ट्रंप ने बाइडन पर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम आयद किया था और उन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत देने से इनकार कर दिया था। मज़ीद बाला ट्रंप ने बाइडन की तकरीब हलफ बर्दारी में भी शिरकत नहीं की थी। तमाम इस बार ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचकर इक़्तिदार की मुंतकली के हवाले से रवायत पर अमल करने की पहल की है। इस मुलाकात से एक मुस्बत पैगाम है कि दोनों रहनुमा इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए एक साथ काम करेंगे। Looking forward to having a, like we said, smooth transition. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome back. And thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it. आखिर में हेडलाइंस फिर। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत किया पेश, तालीमी इस्लाहात का ऐलान। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर शदीद हमला, कहा आज़ादी में उनका कोई किरदार नहीं। राहुल गांधी का महाराष्ट्र में इंतखाबी खिताब, मोदी हुकूमत और मायूती हुकूमत पर शदीद तनकीद। इलाहाबाद में यूपीपीएससी उम्मीदवार का एहतजाज, पुलिस की जबरी गिरफ्तारियों से मुजाहरा शिद्दत इख्तियार कर गया। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मुलाकात, इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर अज़्म का इजहार। 1TV उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।